67-year-old, and this is more than half of my life is gone. But the beauty about sunset is Hello, everyone. Welcome to Sunset Years. In this series, we have conversations on aging, meaning, and peace. And all these thoughtful conversations about aging, relationship, purpose, loss, spirituality, and also finding peace is so much important in the later chapters of life. Throughout this series, I'll be your host, Sukhbir Kaur from Faridabad. But before we start the conversation, let me first introduce Chitra Jha. Chitra Jha, best described as a life skills coach, has been a healer, teacher, writer, counselor, and corporate trainer for almost, I think, more than 4 decades. A certified past life regression therapist, inner child work facilitator, Reiki master, and thought provoker. She has written 4 books and she keeps writing articles also. And personally, I know her as a coach. So today, let's welcome Chitra Jha as she shares her lived wisdom with us. Welcome, Chitra Jha. thank you, Sukhbir, for that lengthy introduction. Chitra Jha is just fine. Yes. So, before we really start on the sunset years, first I would like to know from you why is it called Sunset Years? This particular What podcast. a beautiful, what a beautiful question, because I am in my sunset years. I'm 67-year-old, and this is more than half of my life is gone. But the beauty about sunset is I love sunsets. I was born near a sunset. I live in Goa, where people from all over the world come to enjoy the sunsets. The sunset hour is called the golden hour. The lighting is best at that time. People take beautiful pictures in sunset hours. So, the sunset years of life are beautiful as well. Yes. So, for me, it was the beauty of these years, Yes. the I silver totally years, agree the there. golden. I agree, not because what you are saying so, but I also agree because I'm also in my sunset years. And we are going to enjoy this conversation about how aging can really be active and it can be more meaningful at the same time. So, Yes. is there any particular, this brings me to the next question. Is there any particular experiences in your life which led you to become interested in the emotional and the spiritual aspects of aging? So you see, aging is not something that you do, aging happens. Similarly, emotions are not something that you bring in, you don't buy them from anywhere. Yes. Emotions happen, right? Yeah. And so is the spirit, spirit is like our breath. Spirit is the pran. तो जिंदा है तो स्पिरिट है, तो स्पिरिचुअलिटी है, लाइफ है, जी रहे हैं तो इमोशंस हैं, है ना? और एजिंग तो हो ही रही है, अपने आप हो रही है ये सब. सो इट्स नॉट लाइक कि व्हाट मेड मी इंटरेस्टेड. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन लाइफ. लाइफ इंटरेस्ट मी. 20s में क्या सोचते थे, 30s में कैसे थोड़े लाइफ ने प्रैक्टिकल वेकअप कॉल दिए, 40s तक आके थोड़े ग्राउंडेड हुए, बिल्कुल 50s में बिल्कुल आके थोड़ा समझ आया कि अपने लिए जीना है. और अब 60s में तो मतलब बेस्ट, आई लव दिस डेकेड ऑफ माय लाइफ. बिल्कुल.
So I totally agree. मुझे भी when I touched my 50 and it looked like a milestone and suddenly a lot of things were turning around as if बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर I don't know whether it was my own thought process which was really making me bother about the number 50 or it was more about the associated emotions around the word 50 which made me feel like that. But yes, I totally agree that there are emotional and spiritual aspects of this particular part of Yeah. our life. So Yes. this brings me to another question, that what is your vision for this particular channel? My vision for this channel. सबसे बड़ी बात तो ये है कि I I am a person who loves to express. I express who I am, how I live, what I do. For me, it's like something that gives me great joy I agree. to just express myself. तो दिस इज जस्ट अनदर चैनल ऑफ एक्सप्रेशन. बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं कि हाँ कुछ वीडियो में भी बोलो, कुछ वो करो, बट अब मेरे को कोई ऐसे खास जरूरत से नहीं लग रही थी. मुझे राइटिंग, आई एम अ राइटर, तो मुझे वो राइटिंग में ही, पेन पिक्चर में ही बहुत मजा आता है. बट अभी लग रहा है कि व्हाई नॉट, चलो करते हैं, देखते हैं. सो इट इज जस्ट दैट. Yeah. So this is actually very important part of our life, which हम ऐसे सोचते हैं कि 50 हो गए तो मतलब major part of our life is really gone and the active part of our life is gone. But a very important part of life still remains, and that is where we need to explore ourselves and how can we better live these particular years is really very important. So this is where I'm also struggling, and definitely, I guess I get that I'll get some more answers for how to live during these years, during this podcast with you. So, what are some of the concerns you see older adults struggling with today? या तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे को ऐसे कभी नहीं लगा कि हो अब मैं ओल्डर हो रही हूँ. आई 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 लव बीइंग दिस एज. जब मैं 50 की हुई तो मैंने फैसला किया कि एक तो मैं अपने बाल नहीं रंगूंगी. अब मैं आई विल जस्ट बी हु आई एम, एंड आई विल मोर ओपनली स्पीक. माई राइटिंग बिकेम मोर सब्जेक्टिव आफ्टर दैट, कि जो है जैसा है उसको वेलकम करते हैं. हाँ जी. क्योंकि अगर मैं ये एज से फाइट करूंगी, अगर मैं सोचूंगी कि मैं अभी 20s की रहूं, 30s की ही रहूं, तो मेरे लिए लाइफ मुश्किल हो जाएगी. पर अगर मैं अब एज को वेलकम करती हूँ, और ऐसा क्या है जो मैं आज की डेट में नहीं कर सकती हूँ, जो मैं 20s में, इनफैक्ट आई एम बेटर इक्विप्ड टुडे. फाइनेंशियली आई एम इन अ बेटर स्पेस, फिजिकली आई एम इन अ बेटर स्पेस. अभी तो क्योंकि मैं 60s में हूँ, तो अभी मेरी कोई वो ओल्ड एज टाइप चैलेंजेस मुझे अभी कोई भी नहीं लग रहे हैं. बट यू आर राइट, व्हेन आई कनेक्ट विद, इनफैक्ट मेरा जो काम है, मेरे संघा में जो ज़्यादातर जो लेडीज हैं वो 30s और 40s में हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो मेरी उम्र के हैं. और Yes. वो अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसे सोचती हैं कि पता नहीं, 1 फुट इन द ग्रेव है. ओ माय पेरेंट्स आर सो ओल्ड. व्हेन मैं पूछती हूँ कि क्या उम्र है, तो कई बार तो मुझसे भी छोटे होते हैं. यू नो Mhm. तो मैं Yeah. बोलती हूँ कि दे आर नॉट ओल्ड. उनको ऐसे मतलब ओल्ड मत बनाओ बोल बोल के कि वो दे आर सो ओल्ड, दे आर सो ओल्ड. इतने ओल्ड है नहीं जितना आपने बना दिया उनको. बिल्कुल यू नो बिल्कुल. एंड हाँ. ये मैं सबको, अपनी उम्र वालों को, आप तो खैर मुझसे छोटी हैं, बट ये मैं जरूर बोलूंगी, अपने आप को ऐसे ओल्ड मत बनाओ. Hmm. यू नो Yes. अपना जस्ट जस्ट जो है, अपना जितना कर सकते हो, जितनी. कई लोग हैं जो मेरे से डेकेड्स छोटे हैं, पर बहुत चीजें नहीं कर सकते जो मैं कर सकती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. और बहुत चीजें ऐसी हैं जो मैं पहले भी नहीं कर सकती थी और आज भी नहीं कर सकती हूँ. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद बीइंग ओल्ड. Yeah. है ना. वो Yes. ओल्ड का तो एक हवा है.
हम्म। तो जिन लोगों को मैं देखती हूँ, मैं बहुतों को देखती हूँ मेरे जैसे जो है बहुत मजे कर रहे हैं, और मैं बहुतों को देखती हूँ जो एक रिजाइन होके बैठ गए हैं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कि अभी अपने बच्चों के साथ ही रहना है, हम अकेले नहीं रह सकते हैं वहां पे, बहुओं से डरते हैं। हम्म। या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का बहुत उनको काम करना पड़ता है, वो भी बहुओं से पूछ पूछ के। हम्म। तो मुझे नहीं मालूम है कि ये सब, क्योंकि मेरे साथ ये सब हुआ नहीं है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं है, मेरी बहुएं भी मुझसे बहुत दूर रहती हैं। तो आई डोंट नो, बट ये मैं देखती हूँ सम ऑफ द स्ट्रगल्स, लोनलीनेस का स्ट्रगल है, डिपेंडेंस का स्ट्रगल है, देन ऑफ कोर्स मेडिकल स्ट्रगल्स हैं लोगों के। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं उसको ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहूंगी कि जिसके जो स्ट्रगल्स हैं, बट फिर भी मैं कहूंगी कि ये जो जिंदा दिली है ना, इसको कोई एज से मतलब नहीं होता। बिल्कुल। यस, तो हम्म। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे ये लाइन तो कहनी पड़ेगी कि एज इज जस्ट अ नंबर। हमने उसको, उसके हाँ। अराउंड बहुत सारे इमोशंस डाल दिए हैं या फीलिंग्स डाल दिए, बट एक्चुअली इट्स अ नंबर। उससे कुछ लेना देना नहीं है कि क्या नंबर है। और मुझे इसी बात पे ना एक अपना वो एक छोटा सा इंसिडेंट भी याद आ रहा है कि जस्ट 2 इयर्स पहले मुझे ना डायबिटीज डायग्नोज हुई थी। तो देन इट आई टुक इट एज अ वेकअप चैलेंज कि चलो भाई अब थोड़ा सा ध्यान रखो। और देन आई स्टार्टेड जस्ट लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट हियर एंड देयर इन द लाइफस्टाइल, एंड मोर सो आपके साथ रह के कि कैसे प्रेजेंट में रहना है, कैसे बार बार वो पेंडुलम की तरह इधर उधर नहीं घूमना है पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट में रहो और जो चल रहा है उसके साथ रहो। तो जितनी देर हम वो रह सकते हैं तो उससे मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। और अभी मैं ऑलरेडी प्री डायबिटिक उसमें हूँ, तो मुझे एज यू राइटली सेड कि इट्स ऑल अबाउट आर वी रियली विलिंग टू मेक सम एफर्ट्स if there is a या wake up call. Yeah, that I agree. So this brings me to another relevant question. Many people think this is very true that aging is only about physical decline. And या do you really see things differently over here? तो आपने बोला कि एज इज अ नंबर, तो 2004 की बात है। हम लोग आर्मी बैकग्राउंड की हूँ मैं। तो हम लोग हैदराबाद में पोस्टेड थे, और मुझे एक वर्टिगो का अटैक हुआ, और मैं डॉक्टर के पास गई हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल में, और तो उन्होंने बोला कि शायद ये सर्वाइकल है, तो कुछ ट्रैक्शन ये सब वो देंगे। बट वन सेंटेंस ही सेड, आई वाज लाइक अराउंड 40 प्लस थी मैं, 45 थी एक्चुअली। तो उन्होंने बोला, मैम अब तो उम्र हो गई है, अब बेटर गेट यूज टू दीज थिंग्स। एंड आई वाज लाइक, अच्छा उम्र हो गई है मेरी। अभी तो मैं सुनती हूँ कि 76, क्योंकि एक एवरेज उम्र है, तो 38 इज मिडिल एज। तो उस हिसाब से देखूं तो यस, आई वाज पास्ट मिडिल एज। बट यू नो मैंने अपने मन में कहा कि ये तो मैं क्या, मतलब ये उम्र हो गई है, अब मैं ऐसे रहूंगी। सो नो, सो उसके बाद से मुझे कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग मोर। पहले भी मैं करती थी, इनफैक्ट ये हुआ भी मुझे योगा में सर्वांग आसन करने के बाद हुआ था ये मुझे। सो आई रियलाइज कि शायद कुछ इंजरी होगी, इट्स नथिंग टू डू विद वट एवर दैट एज, क्योंकि अब मैं 67 हूँ और मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और सुबह मैं रोज वॉक के लिए जाती हूँ बीच पे, गोवा में रहती हूँ मैं। तो वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, उसकी एक ब्रांच बहुत ब्यूटीफुली ऐसे रिक्लाइन होती है, उसमें मैं डेली हैंग करती हूँ, अपनी Really? बॉडी को पूरा लिफ्ट कर लेती हूँ। तो मुझे तो बहुत मजा आता है, यू नो तो मुझे ऐसे कोई भी नहीं लगता है कि मेरी ऐसी कोई उम्र से कोई रिलेटेड मेरी कोई प्रॉब्लम हुई है। अभी तक तो नहीं हुई है 60s में, अभी देखो आगे रब रखा। बिल्कुल। बट बट वो जो एक दिमाग में जो बना रखा है कि शायद उससे होगी, तो आई थिंक वो सोचने से ही हो जाती है फिर। नहीं तो ऐसा नहीं कि यंग लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है या किसी भी उम्र में प्रॉब्लम
नहीं होती हैं, किसी भी उम्र में हो सकती हैं। तो पता नहीं, मैं तो काफी अपना मतलब ध्यान रखती हूँ। और आई थिंक वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे एज होती जाती है तो हमें उसके अनुसार जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट करते हुए चलना चाहिए कि या दिस इज व्हाट आई एम एंड हाँ, दिस इज व्हाट, जैसे आपने कहा। तो बट मुझे अगेन या मैं इसको अगेन एज से नहीं जोड़ूंगी। किसी भी एज में जो भी मेरी कोई इशू आ गया है मान लो, तो आई हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, आई हैव टू सी। तो वो तो दैट इज गिवन फॉर एनीथिंग, या not just health related, any यस, other thing also. बिल्कुल बिल्कुल, Yeah, a stitch in time saves nine. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री देयर। सो yeah, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब कहीं वेकअप कॉल आए, जब कहीं कोई समस्या आए तो उसको एड्रेस करो एंड आगे बढ़ते चलो। yeah, और हु नोज, जैसे आपने कहा कि भाई देर आर सो मेनी पीपल हु से कि यही मेरा बेस्ट हेल्थ का टाइम है, और यू नो पिछला वो सब भूल जाओ, बट लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम विच आई एम एंजॉइंग, एंड दिस इज हाउ एजिंग कैन सो ब्यूटिफुली at the same time be alive. Yeah, this is what how I look at yeah, it in your conversation. yeah, So yeah. this brings me to another question, that how do you hope that the viewers will gain from these conversations? पता है क्या है सुखबीर, आज की डेट में जहाँ पे इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, चीजें भरी पड़ी हैं, तो मुझे ऐसे ना, मैं ये सोचती नहीं हूँ कि कोई और क्या गेन करेगा। Yeah. मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि आप और मैं बात कर रहे हैं, Hmm. हमें मजा आ रहा है, बिल्कुल। हमें अलाइव फील हो रहा है, Yes. हमारे हैप्पी हार्मोन्स हो रहे हैं, Secret हमारा topic. हमारा कुछ टाइम अच्छा कट रहा Yes. है ना। एक हम हाँ। प्लान करते हैं कि अच्छा हम मिलेंगे, फिर अच्छा हम बात करेंगे, अच्छा मतलब, तो मेरे लिए इससे बड़ा गेन कोई नहीं है। Yes. बट यस, अगर कोई और भी हमारे जैसे हमारी बातें सुनेंगे, और शायद है कि उनको भी कहीं पे कुछ एक आधा कोई चीज मिले, या सोचने के लिए अपनी लाइफ के बारे में, या किसी के कुछ प्रश्न हो। मुझे तो है कि आई डोंट नो हाउ इट विल पैन आउट। हमारे तो है कि आज्ञा पई अकाल की, ऊपर से अंदर से एक आवाज आई कि चलो करते हैं। तो मुझे नहीं मालूम है कि इससे किसी को क्या हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम अपना काम करते चलेंगे, जो हमारे अंदर आएगा, जो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी, जैसे हमारी आगे उम्र बढ़ेगी। तो आई एम होपिंग कि वी विल कंटिन्यू विद दीज एटलीस्ट किसी और को फायदा होना हो, आपको और मुझे तो होगा। तो मुझे ना यहाँ पे एक बढ़िया सा हिंदी का गाना याद आ रहा है, और मेरे को बहुत ही एप्ट लग रहा है कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, बिल्कुल। जिंदगी बिल्कुल। यूं ही चलती रहे। तो वेरी वेरी ट्रू। तो मुझे यस, लगता है ये अगर संभव है तो बस सबसे बड़ी, सबसे हसीन दुनिया और इसी वक्त और इसी पल है। So, यस, I'm just thoroughly enjoying these conversations. That brings me for today the last question, which is, सबके viewers के दिमाग में होगा भी शायद कि what topics can viewers actually expect us to explore in our future episodes from here? या तो मुझे है कि सनसेट ईयर्स और एनी ईयर्स, हमारी जो लाइफ की कहानियां तो वही होती हैं। हमारी क्या रिलेशनशिप्स हैं, हमारे क्या फाइनेंसेस हैं, हमारी क्या फिजिकल हेल्थ है, हमारी व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू अस टू लिव अ फुल लाइफ, अलाइवनेस कैसे लाएं लाइफ में, लोनलीनेस से कैसे डील करें। Yeah. अगर किसी को किसी भी तरह का डर है मन में कि ये चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में, तो उसको कैसे एड्रेस करें। या फिर जो यंग लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स अब ओल्ड हो गए हैं, उनको अगर कोई अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा कुछ पूछना है, या ऐसा कोई हमसे कुछ कहता है कोई, तो आई अगेन लाइक आई डोंट नो
कि ये Yeah. कैसे पैन आउट होगा। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हम अपनी बातें डिस्कस करेंगे, कोई भी एक टॉपिक लेंगे लाइफ के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे, और जैसे जो भी निकलेगा, जैसे आगे चलेगा, तो लाइफ के हर पहलू पे आई वुड लव टू throw some light on or look at it or learn from it again from our perspective. Finally, तो ये एक Yeah. perspective है। So very true. So Yeah, as already pointed out, the purpose of this particular channel is not merely to, it's basically to help us grow old and yeah, help us grow deeper during this entire conversation. And aging yeah, definitely brings challenges, but it also brings opportunities. And that is yes, where we want to understand. We would like to grow with you. And if there is any question, we will keep looking forward to your questions. You can put it on our channel messages, and we will definitely address it. Thank you so much. yes, Thank you. yes. Thank you, Sukhbir, and bless you. Bye bye. Bye.